Dear students, in the previous video we discussed about the amino alkyl ether class of H1 antihistaminics. We discussed about the general structure of those class of antihistaminics. We discussed that in these amino alkyl ethers, X is O, and then we have this general structure. We also discussed about this molecule diphenhydramine. We look at the SAR of this part, then this linker and this terminal amino group. Thereafter we discuss the मेटाबॉलिज्म. हमने देखा मेटाबॉलिज्म इसका होता है फेज 1 मेटाबॉलिज्म होता है एंड ऑक्सीडेशन और डीएल्काइलेशन से, और फिर हमने इसके अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था. ओके, इन टुडेज वीडियो वी विल प्रोसीड फर्दर विद अनदर क्लास ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स जिनको हम कहते हैं इथिलीन डायमाइंस. ओके, नाउ जनरल स्ट्रक्चर इस क्लास का जो होता है इट इज NCH2CH2N. अगर आप इस वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे, ये वाला पार्ट, दिस इज CH2CH2 इथाइल NH2NH2 इथिलीन डायमाइन. सो इसीलिए इन डेरिवेटिव्स को हम बोलते हैं इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव्स. इसके इस डेरिवेटिव के जो एग्जांपल है वो है एक जो ड्रग है ट्रिप्लानामीन. ओके, ट्रिप्लानामीन इज अ ड्रग. इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, ये इसमें एराइल जो एक पार्ट होता है, इन दोनों में से एक एराइल तो फिनाइल होता है और दूसरा जो एराइल होता है वो क्या होता है, दैट इज 2 पायरिडिल. ना पायरिडिल रिंग सिस्टम, दिस इज, अगर आप इस रिंग को देखेंगे तो दिस इज पायरिडिल रिंग सिस्टम attached by the second position to this molecule. Okay, this part of the molecule. So this is, and this is a phenyl ring system attached by a CH2 linker to this nitrogen. So this is ट्रिप्लानामीन. अगर हम इस फिनाइल रिंग पे अगर हम सब्सटेंस लगा देंगे क्लोरीन, ब्रोमीन या मिथॉक्सी, then we will have derivatives with increased potency. Also अगर हम इस पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा लेते हैं तो जो ड्रग हमको मिलता है, उस कंपाउंड हमको मिलता है, उसको हम बोलते हैं पायरिलामाइन. इसके अलावा इस इथिलीन डायमाइन क्लास के अंदर अगर हम ये वाला जो ग्रुप, ये वाला जो पार्ट है टर्मिनल, ये वाला पार्ट है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द इमिडाजोल रिंग सिस्टम. ओके, और जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमको जो मॉलिक्यूल मिलता है वो होता है एंटाजोलिन. ये जो मॉलिक्यूल है एंटाजोलिन, इट इज हैविंग डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी H1 एंटीहिस्टामिनिक के साथ, बट इट इज डिवाइड ऑफ मेनी ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रिप्लानामीन एंड पैरालामीन या अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ इथिलीन डायमाइंस. ओके, then the another class of H1 antihistaminics is the piperazine class. The piperazine class है, आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि they are derivatives of इथिलीन डायमाइंस. अगर आप इसको देखें स्ट्रक्चर को तो ये दिस इज NCH2CH2N, और इसको कंपेयर करें आप इस वाले स्ट्रक्चर के साथ, दिस इज सेम. ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव अटैच्ड द लिंकर CH2CH2 एंड कनेक्टेड बोथ द नाइट्रोजन. हमने दोनों नाइट्रोजन को आपस में कनेक्ट कर दिया है. सो दिस बिकम्स अ piperazine रिंग सिस्टम. देन वी हैव a CH3 group and then we have these, a carbon attached to this are the 2 phenyl rings. Okay, so this drug is cyclizine. Now if we attach a chloro group at the para position of this phenyl ring system, we get a derivative that is called chlorcyclizine. Now this piperazine class of compound, they exhibit anticholinergic effect. In addition, they also exhibit anti-emetic and anti-vertigo effects. This piperazine class of antihistaminic, they produce less drowsiness. Now drowsiness is the major side effect of H1 antihistaminics.
however this class of H1 antihistaminic piperazine class, it produces less drowsiness. Another class of H1 antihistaminics is the propylamines. Now this class of H1 antihistaminics can have either a sp2 carbon or sp3 carbon. Now this carbon can be sp2 hybridized or it can be sp3 hybridized. When it is sp3 hybridized होगा तो इसको हम बोले, इस क्लास को हम बोलेंगे phenyramines. Okay, the general structure of this propylamines is we have replaced the X with a carbon. So this is CH2 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 alkyl propyl chain attached with this amino group, so it is propylamine derivative. Okay, ये हो गया पूरा का पूरा. This is propyl attached to this amino group, so it is called propylamine derivative. जब हमने देखा कि अगर ये कार्बन sp2 भी हो सकता है, ये कार्बन sp3 भी हो सकता है. जब ये कार्बन sp3 है तो उसको हम बोलते हैं phenyramines. और जो फिनारामिन, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिनारामिन. और जब इस क्लास ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जो सेकंड अराइल रिंग होता है, AR1 AR2 हम जनरल स्ट्रक्चर में देखते आ रहे हैं, तो जो सेकंड अराइल रिंग होता है दैट इज ऑलवेज 2 पायरिडिल. ओके, वो क्या होता है, 2 पायरिडिल होता है. इसके अलावा इस क्लास ऑफ कंपाउंड के अंदर हम इस फिनाइल रिंग के अंदर सब्सटेंस को वेरी करते हैं, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट डेरिवेटिव्स मिलते हैं. सब्सटेंस वेरीड टू गिव डिफरेंट डेरिवेटिव्स. अगर हम इस रिंग के अंदर क्लोरीन लगा लेते हैं पैरा पोजीशन के अंदर, तो हमारी जो एक्टिविटी है कंपाउंड की इट आल्सो इंक्रीजेस एंड आल्सो द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इंक्रीजेस. ओके, द कंपाउंड नेम इज क्लोरफेनारामाइन. अगर हम पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाएगा. इसके अलावा जो ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, ये स्ट्रक्चर इस क्लास ऑफ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स के अंदर प्रिजर्व रहता है. मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इस क्लास के, उन सब के अंदर ये वाला डेरिवेटिव ऐसे ही रहता है, NCH3CH3. इस क्लास ऑफ कंपाउंड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज बाय द एन डीएल्काइलेशन. एन नाइट्रोजन से क्या होगा, एल्किल ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा. और ये जो है आपको पता है, दिस इज फेज 1 रिएक्शन. नाउ द मेटाबोलाइट ऑफ द फेज 1 रिएक्शन अंडरगोज फेज 2 रिएक्शन, कंजुगेशन रिएक्शंस, और जो इसमें होती है दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड कंजुगेशन, एंड स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन. सो इट इज एक्सक्रीटेड बाय द ग्लाइसिन कंजुगेशन मेटाबोलाइट. ओके, इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो कार्बन है ये वाला, इस पे हम 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं. ओके, सो this carbon can show 2 configuration, R और S configuration. और जो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी है वो रिजाइड करती है डेक्स्ट्रो आइसोमर के अंदर, जिसका कन्फिगरेशन क्या है, S है.